Hello friends, this is CA Nikita Somani. I am here today with the very new video of RTP November 2020. So we are continuing that. RTP November 2020, question number 1 to 8 are done. These questions are done. Now I am solving question number 9, that is investment accounts. That is investment accounts. So it says number A. What does it say? There are two questions in question number 9, A and B. So we'll be reading question number 1. It says, in 2018, Royal Limited issued 12% fully paid debentures of rupees 100 each. Interest being payable half yearly on 30th and 31st March of every accounting year. These two dates are very important for solving this question. This says interest is paid half yearly, that is on 30th September and 31st March of every accounting period. On 1st December 2019, it says Kumar purchased 10,000 of these debentures at 101. प्राइस कितना है 101. फेस वैल्यू इज हाउ मच 100. परचेस कितने पे किया 101 पे, एंड दैट इज टू एट कम इंटरेस्ट प्राइस. राइट, परचेस किया कम इंटरेस्ट प्राइस पर, मतलब पे किया होगा विथ इंटरेस्ट. On 1st March 2020, the firm sold all these debentures at 106 कम इंटरेस्ट प्राइस. देखो, परचेस किया तो कम इंटरेस्ट पे किया और सेल किया तो भी कम इंटरेस्ट पे किया. नाउ दे आर सेइंग दैट you are required to prepare investments account in the books of Mr. Kumar for the period 1st December to 1st March 2020. नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. व्हाट डज इट से कि इंटरेस्ट कब कब दिया जाता है 31st मार्च 30th सितंबर, दो डेट्स को इंटरेस्ट पे किया जाता है. ही हैज परचेज्ड, मिस्टर कुमार ने परचेज किए दिस डिबेंचर्स ऑन 1st December 2019. 1st December 2019 को he has purchased how many debentures? 10,000 debentures of rupees 100 each for how much? 101. वो भी क्या? कम इंटरेस्ट. इंटरेस्ट लास्ट कब दिया रहेगा? लास्ट इंटरेस्ट वुड बी पेड ऑन 30th September. ये कितने महीने हो गए? 30th September to 1st December. These are कितने महीने हो गए? दीज आर 2 months. 2 months मतलब अक्टूबर एंड नवंबर. 2 months का इंटरेस्ट भी मिला है उनको. सो और इंटरेस्ट किस पे मिलता है? नॉमिनल वैल्यू. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ. कॉस्ट ऑफ 12% डिबेंचर्स परचेज्ड कितना हो गया? वो 10,000 debentures of rupees 101. So I write down here 10100000. This is the cost value. Less interest कर देंगे. इंटरेस्ट कितने पे निकालेंगे? फेस वैल्यू पे. 10,000 debentures into rupees 100 into it is paid at the rate of 12% for 2 months. तो कितना आता है वो? It comes to 20,000. So total is how much? 9,90,000. 9,90,000. Interest amount is of 20,000. Next it says purchase का हो गया, ठीक है. Purchase amount is done. It says that it sold all the debentures on 1st March. All the debentures it sold on 1st March for rupees 106. For rupees 106. Again one more number line. अच्छे से अंडरस्टैंड होता है इफ यू ड्रॉ दिस नंबर लाइन. देखो दो डेट्स 31st March 30th September. Last interest is received on 30th September.
लास्ट इंटरेस्ट कब रिसीव हुआ? 30th सितंबर को. अब नेक्स्ट कब आएगा फिर से? द नेक्स्ट टर्न वुड बी ऑन 31st मार्च अगेन, है ना. नेक्स्ट टर्न वुड बी ऑन 31st मार्च 2020 अगेन. दिस इज 2019, दिस इज 2019. ठीक है. अब नेक्स्ट बारी कब आएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड की? ऑन 31st मार्च 2020. बट इन्होंने क्या बोला है? द डिबेंचर्स आर सोल्ड ऑन 1st मार्च. Debentures are sold on 1st March. There is a simple logic. When I purchased from someone, मैंने जब किसी से खरीदा ना तो मैंने कम इंटरेस्ट लिया. Debentures I purchased this for कम इंटरेस्ट. सामने वाले ने मुझसे इंटरेस्ट पोर्शन भी लिया. Now when I sell it, I will also receive कम इंटरेस्ट. मुझे डिबेंचर्स का अमाउंट भी चाहिए और इंटरेस्ट भी चाहिए, है ना. आई एम सेलिंग दिस, मैंने इतने महीने इसको होल्ड करके रखा ना. किस लिए रखा? आई नीड सम इंटरेस्ट. सो कितने महीने हो गए? आई एम सेलिंग दिस ऑन, देखो 30th सितंबर को लास्ट डेट है जब लास्ट टाइम इंटरेस्ट रिसीव हुआ. एंड आई एम सेलिंग दिस ऑन 1st मार्च 2020. हाउ मेनी मंथ्स? अक्टूबर, नवंबर, December, Jan and Feb. These are 5 months. These are 5 months. I will also receive the interest for these 5 months. How do I write that? Sale proceeds. 12% debentures sold on 1st March 2020. कितने में बेचा है? 10,000 डिबेंचर्स. सारे डिबेंचर्स सेल कर दिए 1066 रुपीज में. सो दैट कम्स टू 1060,000, राइट. देयरफॉर इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट वुड बी टेकन ऑन फेस वैल्यू, सेम 12% फॉर 5 months. ये हमने निकाला ना 5 months. That 5 months will be taking here. So 5 months का interest, if you calculate on this amount, that comes to 50,000. So total comes to 1010,000. So total comes to 1010,000. Now if you compare question number 9A, see. 1st December purchased, मतलब पैसा गया to bank, prepared the working note. 101 पे खरीदा. Interest is on face value, that is rupees 100. That comes to 20,000 and the total is 9,90,000. Sale proceeds of 12% debentures sold on 1st March 2020. That comes to how much? देखो सेल प्राइस 10,000 into 106, that comes to 1060,000. Then interest less किया and then total amount. All these amounts are put here. देखो, so ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया ना 1010,000. एंड ये दोनों मिला के 1060,000. These two amounts मिला के you can prepare one more column of total, है ना. यहां पर भी आप एक और कॉलम इंसर्ट कर सकते हो टोटल का. दे हैव प्रिपेयर्ड लाइक दैट. तो देखो सेल किया तब इंटरेस्ट कितना मिला? 50,000. परचेस किया तो इंटरेस्ट कितना दिया? 20,000. सो माय प्रॉफिट इज हाउ मच? 30,000, है ना. कॉस्ट पे कितना बेनिफिट हुआ? कॉस्ट पे वाइल सेलिंग you got the cost of 1010,000 and while purchasing you paid how much? 9,90,000. So there is a profit of again 20,000. This is the balancing figure. All the magic is of the dates. ये जो dates है ना बस इसका, these dates, this dates and वो 2 dates दी हुई थी ना, 2 more dates. कौन से dates है वो? 31st March and 30th September. These 2 dates when the interest are received. बस ये दोनों का लॉजिक है, बाकी तो सारा it's easy. Next question, number B. Mr. X acquires 200 shares of a company
On come right basis for rupees 60,000. He subsequently receives an offer of right to acquire fresh shares in a company in proportion of 1:1 at the rate of rupees 105. He does not subscribe. But sells all the rights for rupees 15,000, and the market value of the shares after their becoming X right has also gone down to 50,000. What should be the accounting treatment in this case? Please understand what is the scenario in this question. There are two people. इसके पास ऑलरेडी कुछ शेयर्स है. अभी क्या हुआ, द कंपनी ने राइट इश्यू निकाला, 1:1 का राइट इश्यू निकाला. दिस पर्सन सेज आई डोंट वांट द राइट इश्यू, मुझे राइट्स नहीं चाहिए. तो ये क्या बोलता है, दिस पर्सन सेज आई वांट द राइट्स. एक काम करो, ये जो राइट्स है ना, जो आपको राइट शेयर्स मिलने वाले, ये मुझे ट्रांसफर कर दो. आई विल पे यू रुपीज 15,000 एज पर दिस क्वेश्चन. बोलते कि मैं आपको 15,000 रुपए देता हूं, मिस्टर एक्स को वाई देगा 15,000 रुपए फॉर ट्रांसफरिंग द राइट्स ऑफ दोज शेयर्स. तो मिस्टर एक्स का फायदा कितने का हो गया, चलो ठीक है, मैं राइट्स बेचता हूं, राइट्स बेचने का मुझे पैसा मिलेगा 15,000 रुपए, राइट. एंड व्हाट हैपेंड लेटर, इसके पास जो ऑलरेडी शेयर्स थे, दोज वेर ऑफ रुपीज 60,000. वो कितने रुपए के थे, 60,000 रुपीज. लेटर ऑन क्या हुआ, दैट शेयर प्राइस कम डाउन टू 50,000. नाउ यहां पे क्या हो गया, व्हाट हैड हैपेंड हियर, 10,000 रुपीज का लॉस है ना. 10,000 रुपीज का यहां पर लॉस है. क्या करता हूं, आई एम हैप्पी, मैं लॉस में नहीं हूं. 10,000 लॉस हो गया ना, पर 15,000 मुझे प्रॉफिट हुआ. व्हाट डज इट से, चलो ठीक है, मैं P&L में डालता हूं ये अमाउंट 15,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसका एक फ्रेंड आता है यहाँ पर, एक्स का फ्रेंड बोलता है, अरे वेट, यू कैन नॉट ट्रांसफर दिस 15,000 टू P&L अकाउंट. इसका क्या, ये 50,000 रुपए जो कम डाउन प्राइस हो गई है, व्हाट अबाउट दिस रुपीज 10,000, इसका क्या करेगा तू. तो बोलता है ओके चल ठीक है, इसका भी एक ट्रीटमेंट दे देता हूं, आई रिड्यूस दिस 10,000, ये मेरा लॉस मैं माइनस कर देता हूं, एंड अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 5,000 रुपीज का. अब इतना अमाउंट मैं P&L को क्रेडिट करता हूं. दिस इज एज पर AS 13. व्हाट डज AS 13 से, AS 13 बोलता है, एज पर AS 13 इट सेज दैट इफ योर मार्केट वैल्यू इज लोअर देन कॉस्ट कितना था, 60,000, मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, 15,000. इफ दिस इज लोअर देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू immediately record this loss into profit and loss account. Let's see this into the answer. As per AS 13, investments are acquired on come right basis and the market value of investment immediately after their becoming X right is lower than cost for which they were acquired. So it may be appropriate to apply the sale proceeds of the rights to reduce the carrying amount. अभी देखो यहाँ पर what they have done, right falls to 50,000, सेल प्रोसीड्स कितना है 15,000, और 10,000 हमने बोला था ना, इसका क्या हो गया, लॉस हो गया. 15,000 इसको सेल प्रोसीड से मिले हैं. ओके, 15,000 माइनस 10,000, ठीक है. अप्लाइड, दिस मे बी अप्लाइड टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट टू ब्रिंग इट टू द मार्केट वैल्यू ऑफ 50,000 and 5,000 would be credited to profit and loss account. 5,000 would be credited to profit and loss account. अभी हमने देखा ना, 15,000 minus 10,000. So that comes to 5,000. This 5,000 only will be credited to profit and loss account. Next question. Question number 10. Insurance claim for loss of stock. What does it say? Shams Godown caught fire on 29th August 2020 and a large part of stock of goods was destroyed. However, goods costing 54,000 were salvaged.
इतने का अमाउंट सैल्वेज्ड हो गया. ओके, रिमेंबर दिस अमाउंट. गुड्स कॉस्टिंग 54,000 सैल्वेज. ट्रेडर प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन. लेट्स रीड. स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल 2019. फायर कब हुआ है? 29 अगस्त को. हमको इंफॉर्मेशन कब का दे रहा है वो? 1 अप्रैल. वाई? टू फाइंड द जीपी रेशियो, है ना. एक जीपी रेशियो निकलेगा जो परसेंट में आएगा. स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020. ओके, नो प्रॉब्लम. एक साल का हमको दिया है, यहां से हमको निकालना है जीपी रेशियो, है ना. देन परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. इसका ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ऊपर वाले से. परचेजेस फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ फायर. फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ फायर, ये अलग इंफॉर्मेशन है. कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल टू डेट ऑफ फायर. देखो कुछ सैंपल्स दिए, एडवर्टाइजिंग का खर्चा. Then cost of goods withdrawn by the trader for personal use and then sales for the year ended 31st March 2020. Okay, sales भी दे रखा है यहाँ पर. देखो ओपनिंग स्टॉक दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, परचेजेस दे दिया, सेल्स भी दे दिया. यहां से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी? ग्रॉस प्रॉफिट की. We want that only. ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना. देखो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा. इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ फायर. ठीक है, ये अलग इंफॉर्मेशन है. श्याम हैड टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रुपीज हाउ मच? 2,50,000 विद द एवरेज क्लॉज. देखो यहाँ पर दे दिया है एवरेज क्लॉज, मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम दैट विल बी एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. कंसिडर्ड दैट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ फायर इज सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर. हमने यहां पर बोला ना कि इस सारे इंफॉर्मेशन से ये ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, तो बोलते हैं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट सेम रहेगा. कंसीडर दिस एज सेम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. फिर लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. देखो नंबर लाइन इज माय फेवरेट. यहां से ना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है. टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर लाइन बिकम्स क्वाइट इजी. 1 अप्रैल 2019, 31st March 2020 एंड फायर occurred on. फायर कब हो गया? 29th August 2020. यहां का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहां का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. लेट्स सॉल्व. हाउ डू यू प्रिपेयर दैट? यहां का ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर आएगा. कितना दिया है ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक इज गिवन एज 355,250. ये प्रीवियस ईयर का डेटा है. परचेजेस 28,39,800. सेल्स आर 40 lakh. Closing stock is 395,050. Find out this value. I'm waiting. Find this value. Gross profit comes to 12 lakhs. GP ratio कैसा निकाला जाता है? Therefore, GP ratio, gross profit upon sales into 100. 12 lakh divided by 40 lakh into 100. So the GP ratio comes to 30%. Now this 30% will be applied to this period. यहां पर भी हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. Purchases में we have seen that some goods are given for advertisement और कुछ personal drawings है.
तो वो यहीं से माइनस कर देंगे, और दैट कैन बी रिटर्न टू द क्रेडिट साइड एज वेल, बट दिस इज मोर fair presentation in the books of accounts. Okay, so that is why we are reducing from the inner column from the purchases. Then we have another information of sales, and then closing stock, and then we get here gross profit. यहाँ पर ये परसेंटेज लगाएंगे 30% of sales, and you know here the magic is different. You get the closing stock as balancing figure, क्योंकि आपका gross profit जो है वो तो sales से आ जाएगा, है ना, 30% of sales. So your closing stock would be what? Balancing figure. And this closing stock would be stock as on the date of fire. So write down. Information is already marked, so we'll be quickly writing down this information. 395,050. Then purchases are what? Purchases given are 16,55,350. Advertisement के लिए 20,500, and drawings are how much? 1,000. Drawings are how much? 1,000. So outer में कितना amount जाएगा? 16,33,850. 16,33,850. And then we have information of sales. How much is the sales? 22,68,000. इस sales का 30% would be your gross profit. How much is the sales? Sales is 22,68,000. 22,68,000 into 30%. So that comes to 680,400. 680,400. Total करो. Total comes to 27,09,300. 27,09,300. इसमें से ये अमाउंट को माइनस किया तो you get the balancing figure of closing stock, and that comes to 4,41,300. So this is the stock as on the date of fire. Working note. Stock as on the date of fire. That comes to how much? 441,300. 441,300 less stock salvaged. कितना हुआ था? salvaged amount ऊपर के लाइन में दिया था 54,000. So your net loss of stock. Net loss of stock, that comes to 387,300. That comes to 387,300. Now you have to apply the average clause. You have to apply the average clause to find out the insurance claim. To find the insurance claim. कैसे निकालेंगे वो? अगर लॉस 441,300 का हो जाता तो इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट दैट इज 2,50,000 जरूर दे देते. इंश्योरेंस कंपनी ऐसा बोलती है. बट लॉस कितना हुआ? लॉस कितना हुआ? एक्चुअल लॉस इज 387,300. Write down 387,300. So if loss is 387,300, what is the insurance amount? Cross multiply. कितना आएगा? 387,300 into 2,50,000 divided by 441,300. Therefore, insurance claim amount कितना आएगा फिर? When you solve for this, you get rupees 219,409. This amount is the amount of insurance claim. So thank you so much guys. That's it for today.